Hello students, in the previous video we understood that how to remove the modulus from an expression by making the critical points. Then we also looked at some elementary properties of modulus. For example, that modulus cannot return you a negative value. Then if mod x is equal to a, then x can be plus minus a provided a is positive. And similarly, we looked at certain inequalities like mod x smaller than a or mod x greater than a. So now we use those notions in solving the equations containing modulus. So the key concept involved will be always, most of the time it will be removing the modulus from the expression by making the cases, although in certain simple situations you can use the properties as well. So let's start by solving the questions one by one. यहाँ पे हम लोग critical points जो कर सकते हैं. Let's say method 1 is I'm using the concept of critical points to solve the question. Critical points से करेंगे है ना. तो यदि हम इसको critical points से करें तो there is one critical point which is 2/3, which means आपको दो केस बनाने पड़ेंगे. Case 1 where we assume that x belongs to minus infinity to 2/3, and then case 2 where we assume that x belongs to 2/3 to infinity है ना. ये दो केसेस बनाते हैं. और अब मॉड हटा देंगे तो पहले वाले केस में से हमारे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 3x minus 2 is equal to 1, because 3x minus 2 this quantity will be negative. 3x minus 2 is negative, तो माइनस साइन से मॉड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा. So this gives us that 3x minus 2 is equal to minus 1, and this gives you x is equal to 1/3. If I solve the second case, then in here we get when x belongs to 2/3 to infinity, then 3x minus 2 will be a positive value. 3x minus 2 is positive. Let's say non-negative, more appropriate. It's non-negative, and therefore हम mod सीधे हटा सकते हैं. Mod will not do anything. So you get 3x minus 2 is equal to 1, and this implies x is equal to 1. So we get two values from here. The first value is x is equal to 1/3 and x is equal to 1. This is the answer if I solve this question by making the cases. But I can solve this question very quickly if I use the properties instead. So using the fact that mod x equal to a implies x equal to plus minus a. And this is obviously true when a is greater than 0. So using this fact, this particular property directly, I write 3x minus 2 is equal to plus minus 1, which means 3x is equal to 3 or 3x is equal to 1, and this gives you x equal to 1 or x equal to 1/3. So this is the same answer which we got here, the same thing. So again, in this question the use of property was definitely a better approach. Let's take the next problem. Now in this particular question, again we solve this question by method 1, critical points. We start first with critical points. Now the question involves one modulus और उसका critical point है x equal to 3. तो यहाँ से फिर से हमारे पास दो केसेस आएंगे. केस 1, if x belongs to minus infinity to 3, and then you have case 2, if x belongs to 3 to infinity ना. ये दो केसेस बनेंगे यहाँ पे. Now if I look at the first case, अब पहले केस पे चलते हैं. पहले केस में हमारे पास आता है x minus 3 नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस टाइम्स x minus 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे मॉड नहीं है तो आपको कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं करनी, जैसा है वैसे ही छोड़ दो. दिस गिव्स यू माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 minus 2x, एंड दिस सिंप्लीफाइज टू x इक्वल टू 4. अब एक चीज आपको जो चेक करने की है वो ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आती है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, this value is obtained
इफ़ वी अज्यूम दैट एक्स लाइज इन दिस इंटरवल, क्योंकि ये वैल्यू बच्चों तब आती है जब हम मॉड को इस तरह से हटाएंगे, और मॉड ऐसे तब हटेगा जब एक्स इस इंटरवल में हो। तो जो भी सोल्यूशन हमारा आना चाहिए, द सोल्यूशन फ्रॉम दिस सेट, सोल्यूशन फ्रॉम अ केस मस्ट सेटिस्फाई द केस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो अभी तक सोल्यूशन बनाया है एक्स इक्वल टू 4, वो आपके केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू 4 तब आएगा जब मैंने अज्यूम करा था कि एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, लेकिन 4 तो 3 से छोटा है नहीं, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज नो सोल्यूशन। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमने जो केस बनाया था एक्स बिलोंग्स टू 2/3, उसमें ये 1/3 सेटिस्फाई कर रहा था, दिस वॉज लाइंग इन दिस इंटरवल। यहाँ पे जो सोल्यूशन आया था एक्स इक्वल टू 1, दिस वॉज लाइंग इन दिस इंटरवल। तो ये दोनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल थे। इस क्वेश्चन में जो आपके पास सोल्यूशन आता है एक्स इक्वल टू 4, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरह से यदि हम अब सेकेंड वाले केस को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मॉड पॉजिटिव ही खुलेगा, तो वी गेट x माइनस 3 is equal to 7 minus 3x, sorry 7 minus 2x, and this will simplify to 3x is equal to 10, which implies x is equal to 10 by 3, and this value 10 by 3, this lies in this interval, है ना, ये 3 से बड़ी वैल्यू है, 10 by 3 is 3.33, it is greater than 3, this will satisfy the solution, this will satisfy the condition, so therefore this is a solution. So my final answer for this particular problem is x belongs to the set 10 by 3. आप चाहो तो सीधे x equal to 10 by 3 लिख सकते हो, but it is more appropriate to use the set notations. अच्छा, now the next doubt is कि can I solve this question using the property? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यदि आप इसको लिखोगे mod x minus 3 equal to 7 minus 2x, तो मुझे पता है कि प्रॉपर्टी तब काम करती है mod x equal to a holds, ये जो प्रॉपर्टी थी, जब a ग्रेटर देन 0, है ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, राइट साइड पॉजिटिव हो। यहाँ पे जो आपका राइट साइड है, दिस इज द राइट साइड हियर, आप देख सकते हो दिस राइट साइड इज नॉट पॉजिटिव, ये दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी यदि हम साइन स्कीम देखें तो ये 7/2 के राइट पे पॉजिटिव है, 7/2 के राइट पे नेगेटिव है, और 7/2 के लेफ्ट पे पॉजिटिव है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, दिस प्रॉपर्टी वर्क्स ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, राइट साइड ए पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे राइट साइड इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस डायरेक्टली। अब इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अब हम इसमें चाहें तो वी कैन मेक सम केसेस कि लेट्स से इफ 7 minus 2x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर होगा, है ना। तो उस केस में लेट्स से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग द केसेस आल्सो। हालांकि मतलब आई नॉट रिकमेंड दिस अप्रोच इज नॉट रिकमेंडेड। इफ यू डू नॉट हैव अ कांस्टेंट ऑन द राइट साइड, डू नॉट यूज द मेथड, ठीक है। लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम सॉल्विंग इट। तो लेट्स आई सॉल्व इट ऑन द राइट, let's solve it here. So the question was modulus of x minus 3 is equal to 7 minus 2x. This was the problem, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो क्वांटिटी राइट साइड पे थी, दिस इज नॉट पॉजिटिव, तो मैं दो केसेस बनाता हूँ। केस 1, if 7 minus 2x is greater than 0, it's greater than equal to 0, that is if x is less than equal to 7/2. So I assume that x is less than equal to 7/2. उससे क्या हो जाएगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और यदि ये पॉजिटिव है तो मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। सो नाउ आई कैन राइट देयरफॉर in this particular case when x is less than equal to 7/2, I can write that x minus 3 is equal to plus minus 7 minus 2x, and this gives you, if I take the positive sign, I get x minus 3 is equal to 7 minus 2x, or x minus 3 is equal to 2x minus 7. Now this gives you x is equal to 10 by 3, or x is equal to 4.
Now our assumption was that x should be, we assume that x is less than equal to 3.5. So clearly this value is 3.33. This will satisfy the solution, and this value will not satisfy the solution. The answer is 10/3. Then we go for the second case, case 2. If we assume that 7 minus 2x is less than 0, and this implies x is greater than 7/2. अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इक्वेशन, क्योंकि mod x माइनस 3 ये क्वांटिटी मुझे पता है कि इसका आउटपुट नॉन नेगेटिव होगा। तो एक नॉन नेगेटिव नंबर हम कह रहे हैं इज इक्वल टू 7 माइनस 2x विच इज अ नेगेटिव नंबर। वी अज्यूम दिस है ना, ये नेगेटिव है, हमने ये अज्यूम करा है। तो लेफ्ट साइड नॉन नेगेटिव और राइट साइड नेगेटिव, और ये दोनों बराबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन दिस केस आंसर इज क्लियरली नो सोल्यूशन, देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। बट अगेन आई विल नॉट रिकमेंड दिस अप्रोच, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। मैंने सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली, आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस काइंड ऑफ अप्रोचेस, लेकिन to begin the chapter generally I will not recommend this. So basically use this particular property must be used only when there is a positive constant on the right side, positive constant on the right side, otherwise do not use this. फिर बेटर होता है केसेस बना के कर लो। तो चलो let's take the next problem. So now again this question involves there are modulus at two places. So let's draw the number line and then we mark the critical point. So first critical point is -1 corresponding to this particular modulus, and then you have 1/2 corresponding to this particular modulus. So you'll have to make three cases. Let's start by making the cases. Case 1, if x belongs to -∞ to -1, अगर यदि x की वैल्यू -1 से छोटी है तो आप कोई वैल्यू प्लग इन करके देख लो। लेट्स से -2 प्लग इन करा तो पहले वाला मॉड नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, +3x पे कोई मॉड नहीं है तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी। -2 रखने पे जो सेकंड वाला मॉड है, राइट साइड वाला मॉड, ये भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वी गेट -, 2x - 1 +3। सिंप्लीफाई दिस, वी गेट 2x - 1 इज इक्वल टू 4 - 2x, and this gives you x is equal to 5/4, gives you x equal to 5/4. But then do not jump to the conclusion कि आंसर होगा, है ना। do not jump to this conclusion. In fact आप देखोगे ये जो वैल्यू आ रही है, this does not satisfy the case, and therefore this is no solution. There is no solution because it is not satisfying the case. ठीक है, now we go for the second case. We start with the second case, case 2. So now in case 2 we assume that x belongs to, x lies in this interval now. So if x belongs to -1 to half. Now if x belongs to -1 to half, then the modulus on the left side will, let's say I put some x equal to 0, so the left side will return a positive value, तो mod ऐसे ही खुल जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू, x इक्वल टू 0 डालने पे राइट साइड वाला मॉड नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस, वी गेट 4x + 1 इज इक्वल टू 4 - 2x, and this gives you x is equal to 1/2. Now 1/2 बच्चों जो वैल्यू आती है हमारे पास, क्या ये वैल्यू हमारे केस को सेटिस्फाई कर रही है? इज इट सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर केस? आप देखोगे इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि हमने 1/2 ओपन में लिया हुआ है, वी हैव टेकन 1/2 इन ओपन। नाउ देयर कैन बी अ डाउट हियर कि सर यदि हम ऊपर ओपन ले लेते, हमने ओपन लिया है ना, सपोज अगर मैं केस ऐसा बनाता, x बिलोंग्स टू -1 टू हाफ, अगर मैं यहाँ क्लोज लेता, क्योंकि हम तो एक जगह ओपन एक जगह क्लोज कहीं भी ले सकते हैं, तो सपोज मैं यहाँ क्लोज लेता तब तो ये आंसर हो जाता। तो इसमें बच्चों परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये जो आपका सोल्यूशन छूटा है ये पक्का अगले केस में आ जाएगा। दिस वैल्यू विल कम अगेन इन द नेक्स्ट केस, जैसे हम देखेंगे। तो कहीं एक जगह ओपन एक जगह क्लोज करना था, अगर कहीं पे ओपन की वजह से वैल्यू छूट रही है तो मत परेशान होना, वो आगे दूसरे तीसरे केस में कवर हो जाएगी।
ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट केस। तो देखते हैं थर्ड केस, देखते हैं और क्लियर हो जाएगा अभी। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड केस नाउ, केस 3। केस 3 इज इफ x बिलोंग्स टू हाफ टू इन्फिनिटी। अब क्या, मैंने हाफ पे क्लोज ले लिया ना, तो यदि x की वैल्यू हाफ से इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, तो कोई वैल्यू डाल के 1 डाल के देख लेता है, तो लेफ्ट साइड वाला मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये एज इट इज खुलेगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 1 रखने पे राइट साइड वाला मॉड भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो गेट 2x माइनस 1 प्लस 3, दिस गिव्स यू 4x प्लस 1 is equal to 2x plus 2. This gives us x is equal to 1 by 2. X equal to 1 by 2. And this value now is satisfying this solution. Is satisfying the case. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर ये यहाँ पे वैल्यू छूट गई है, ऊपर वाले केस में वैल्यू छूट गई थी, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू फिर से कवर हो गई। इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वैल्यू। तो आपको परेशान नहीं होना, ऊपर ओपन ले लो, क्लोज ले लो। अगर ऊपर क्लोज लेते तो यहाँ कवर हो जाती, यहाँ छूट जाती, तो बात एक ही है, x इक्वल टू 1 by 2 तो आपको मिल ही गया। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 3 केसेस। सो द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू 1 by 2। अगेन प्रेफर द आंसर इन सेट फॉर्म। दिस इज द आंसर ना, x बिलोंग्स टू 1 by 2 curly brackets. This is the only solution. So we now move to the next problem. Now this next question again involves two modulus, so we'll first make the critical points. This modulus has the critical point at 0, this has the critical point at 2. So on the number line we draw the critical points 0, 2, and we go for 3 cases. Case 1, if x belongs to minus infinity to 0. Now if x belongs to minus infinity to 0, then the first modulus returns a negative value. आप x को -1 डाल के देखोगे तो गेट अ नेगेटिव वैल्यू। तो पहले वाला मॉड माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे वाला मॉड में यदि हम x को -1 डालें तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी फिर से एक नेगेटिव वैल्यू ही देगी, तो वी अगेन गेट अ माइनस साइन, तो वी गेट x plus 2 equal to 2. Now this will simplify to -2 equal to 2, which is impossible condition. यदि x माइनस इन्फिनिटी से 0 हुआ तो -2 और 2 बराबर होंगे, तो दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नो सोल्यूशन, you do not get anything from here. We then go for the second case. If x belongs to 0 to 2, सपोज हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो पहले वाले मॉड के अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड एज इट इज आउटपुट दे देगा +x। यदि x को 1 डालें तो दूसरे वाले मॉड के अंदर नेगेटिव बनता है, तो वी गेट अगेन अ नेगेटिव साइन, सो वी गेट दिस वैल्यू इक्वल टू 2। सो दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 2, लेकिन 2 हमने ओपन इंटरवल में रखा हुआ था। हालांकि मुझे इससे चिंता नहीं है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि यदि यहाँ पे छूट रहा है तो अगले केस में कवर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस केस में दिस इज नो सोल्यूशन बिकॉज वी अज्यूम दैट 2 इज इन द ओपन इंटरवल। एंड नाउ वी गो फॉर द थर्ड केस, केस 3, where we assume case 3 when x belongs to 2 to infinity. यदि x 2 से इन्फिनिटी है तो क्या कंडीशन आती है, तो इन दैट केस द इक्वेशन बिकम्स, यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी रखते हैं तो पहले वाला मॉड पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा और दूसरे वाले मॉड के अंदर से भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो वो वाला मॉड भी एज इट इज खुल गया, एंड वी गेट 2 इज इक्वल टू 2। नाउ दिस स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली ट्रू, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा ना, 2 इक्वल टू 2 कब होगा, हमेशा होगा भाई। जैसे यहाँ पे आया था -2 इक्वल टू 2, दिस इज नेवर पॉसिबल, लेकिन ये तो हमेशा पॉसिबल है, 2 इक्वल टू 2 तो हमेशा ही होता है, दिस इज मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट। तो दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज कि ये जो पूरा इंटरवल मेरा था, जब भी एक्सेस इंटरवल में होगा मुझे हमेशा एक आइडेंटिटी मिलेगी, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है स्टेटमेंट्स विच आर यूनिवर्सली ट्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 इज इक्वल टू 3, 1 इज ग्रेटर देन 0, -5 इज स्मॉलर देन 4, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिटीज। तो जब भी आइडेंटिटी आती है तो पूरा केस आंसर होता है ना, ये ध्यान रखना है हमको आगे से कि इफ देयर इज एन आइडेंटिटी, if there is an identity in a case, then the entire case is the solution,
एंटायर केस इज द सोल्यूशन, एंटायर केस इज सोल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा केस आंसर हो गया। तो थर्ड केस से मुझे सोल्यूशन मिलता है यहाँ से x बिलोंग्स टू 2 to infinity. This is the values of x which will satisfy this particular equation. पहले केस से there was no solution, सेकेंड केस से भी no solution। अब आप देखो x equal to 2 मुझे यहाँ पे मिल गया आखिरकार, पिछली बार भी मिल गया था, ये हमेशा मिल जाएगा। मतलब इसमें आप 2 ओपन क्लोज कहीं भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक जगह ओपन एक जगह क्लोज करना है। और आगे से हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी मुझे किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी मिलेगी किसी भी केस में, तो वो पूरा का पूरा केस हम आंसर ले लेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। सो वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इन दिस क्वेश्चन you have 3 different modes. So let's identify the critical points. The critical points are, from the first mode we get 0, from the second mode we get 1, from the third mode we get 2. तो ये 3 critical points आ गए, 0 1 2 है ना। यहाँ से आपको 0 मिल गया, इससे आपको 1 मिल गया और इस वाले से आपको 2 मिल गया। तो there are 3 critical points, which means there will be 4 cases. So now we start with the cases. Case 1, if x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 0 है ना, यदि x वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 होती है तो इस केस में पहले वाले मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा, -1 डाल के देख रहे हैं हम लोग, तो -x। दूसरे वाले मॉड के अंदर भी आप देखो नेगेटिव बनेगा और तीसरे वाले मॉड के अंदर भी नेगेटिव बनेगा, तो बाहर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया ना, 3 times x minus 2 is equal to 4. Now this gives you minus 6x minus 8 and therefore we get x is equal to minus 4 by 3. ठीक है, and now ये जो वैल्यू आती है, this satisfies our case, so this will be taken as a solution. This will be taken as a solution. Now we move to the second case. If x belongs to 0 to 1. Now if x belongs to 0 to 1, पहली वाली मॉड से वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी तो सेम साइन के साथ खुल गया, x की जगह हम कुछ 0.5 डाल के देख रहे हैं। सेकेंड वाले मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा तो मॉड माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा उसको, थर्ड वाले मॉड के अंदर भी नेगेटिव बनेगा तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। राइट साइड पे कोई चिंता है नहीं, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, दिस इज 4x minus 2x, we get 2x plus 2 minus 6 is minus 4 is equal to 4. This gives you x is equal to 4. लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारे केस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आर केस वॉज कि x की वैल्यू 0 से 1 है, यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू 4 है, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। वी देन गो फॉर द थर्ड केस, केस 3। अब केस 3 में अगर आप काम करोगे तो आप देखते हो कि वी एज्यूम दैट x बिलोंग्स टू 1 to 2 है ना। अब की बार हम इस वाले केस में वी आर वर्किंग ऑन दिस वन हियर। तो यदि x की वैल्यू 1 से 2 है तो उस केस में पहले वाले, लेट्स से वी प्लग इन x इक्वल टू 1.5, तो पहले वाला मॉड तो सेम रहेगा। यदि हम x को 1.5 रखें तो आप देखोगे दूसरे वाले मॉड में भी सेम वैल्यू आएगी और तीसरे वाले मॉड में नेगेटिव आएगा। दिस वैल्यू इज 4। यहाँ से हमारे पास आता है 6x इज इक्वल टू 4 एंड दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट अ सोल्यूशन क्योंकि हमने ऊपर 2 इंक्लूड नहीं करा हुआ है। एंड फाइनली वी गो फॉर द फोर्थ केस, इफ x बिलोंग्स टू 2 to infinity। उस केस में पहले वाले मॉड से वैल्यू सेम आएगी, दूसरे वाले मॉड से भी वैल्यू सेम आएगी, 2 times x minus 1। तीसरे वाले मॉड से भी आप देखोगे यदि हम x को 3 डाल के देखें तो तीसरे वाला मॉड भी के अंदर भी पॉजिटिव ही है, तो वी अगेन गेट द सेम आउटपुट इज इक्वल टू 4। नाउ दिस गिव्स यू 4 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज एन आइडेंटिटी, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और यदि किसी केस में आइडेंटिटी आती है तो पूरा का पूरा केस आंसर होगा। तो केस 4 से हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू 2 to infinity. So now our final answer for this problem becomes x belongs to 2 to infinity union minus 4 by 3 that we obtained from the first case. So this is the final answer of this question.
2 to infinity union minus 4 by 3 from the first case.